So today's lecture, that is lecture number 13 of electrostatics, we will be doing a few questions which is related to superposition theorem, understanding how to apply it, and then we will look into the unsolved section of the textbook. But for that, it is very necessary today that we understand how to do it, as there are very few examples in your book to apply the superposition theorem. So let's look at a few examples and the different types. So let's look at the first type. So I could call it as type 1 of the application of the superposition theorem. Then only we can be, confident about solving the unsolved section in the textbook. So if you look at this particular question, they're saying there are 10 charges which are applied to or are present along the x-axis at various points. That is at 10 centimeters from the origin. So if this is the origin, there is one charge here. There's another charge at 20 centimeters. There's another charge as 30 centimeters. And the 10th charge is at 100 centimeters. In other words, at a distance of 1 meter is the last charge. And if you see, all the charges have values have been given. If this is Q1, Q2, Q3, and Q10. So Q1 they have given as 1 into 10 raised to minus 8. Second one is 8 into 10 raised to minus 8. Third is 27 into 10 raised to minus 8. So you can see some sort of a series here. एक series दिखाई दे रहा है आपको, right? 1 है, फिर 8 है, उसके बाद 27 है. इसका मतलब 1 के बाद फिर 2 का क्यूब है, फिर 3 का क्यूब है, इस तरीके से जा रहा है. एंड द 10th वाला है तो 10 का क्यूब हो रहा है, सो इट्स 1000 into 10 raised to minus 8. और हमें पूछा गया है कि फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन 1 कूलम. सो दिस इज 1 कूलम प्लेस्ड एट द ओरिजिन. मतलब यहां पर एक चार्ज है जिसका 1 कूलम है, और हमें पता लगाना है कि ये जो Q1 है, Q2 है, Q3 है, Q10 तक जो चार्जेस हैं, because they are along the same axis, same line, वो किस तरीके का फोर्स लगाते हैं इस 1 कूलम चार्ज पर, कितना फोर्स लगाते हैं इस 1 कूलम चार्ज पर, ये हमें देखना है. सो इट इज वेरी सिंपल. हमें पता है कि द फोर्स फॉर्मूला, that is the Coulomb's law, is 1 upon 4 pi epsilon naught. हर बार एक फोर्स लगने वाला है ऑन Q नॉट. मतलब हमें ढूंढना है कि Q1 का असर इस चार्ज पे कितना हुआ, Q2 का असर इस पे कितना हुआ, Q3 का असर इस पे कितना हुआ, Q10 का असर इस पे कितना हुआ. So I have to see Q naught into Q1, upon the distance R1 square. So I'm just taking 1 upon 4 pi epsilon naught common. तो मेरा जो नेट फोर्स होगा फिर होगा Q naught into Q2 upon R2 square प्लस डॉट 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 ऐसे जाके Q naught into Q10 अपॉन R10 का स्क्वायर, राइट? ये नेट फोर्स होगा. सारे फोर्सेस ऐड हो जाएंगे. दे आर ऑल अलोंग द सेम लाइन. आप देखेंगे कि यहाँ पे एक और चीज कॉमन निकल रहा है. Q नॉट आपको हर जगह पे कॉमन दिखेगा क्योंकि उस पे ही हमें देखना है. और Q नॉट का वैल्यू क्या है? 1 कूलम विच इज प्लेस्ड एट द ओरिजिन. तो हम Q नॉट को भी बाहर लेके आ सकते हैं. 1 upon 4 pi epsilon नॉट आपको पता है 9 into 10 to the power 9. Q नॉट इज 1 कूलम जिसको मैं बाहर ला रही हूँ. तो इसके अंदर मुझे क्या मिलने वाला है? आई एम गोइंग टू गेट 1 into 10 raised to minus 8 अपॉन पहला डिस्टेंस है 10 सेंटीमीटर्स. 10 सेंटीमीटर्स का मतलब है 10 raised to minus 1 the whole square. You agree? 10 सेंटीमीटर्स का मतलब है 10 into 10 raised to minus 2. इसका मतलब है 10 raised to minus 1 the whole square. प्लस
8 into 10 raised to minus 8 upon, I can say 2 centimeters is 2 into 10 raised to minus 1 the whole square. Plus, I can say 27 into 10 raised to minus 8 upon, I can say this is 3 into 10 raised to minus 1 the whole square. इस तरीके से लास्ट तक जाएगा. That is 1000 into 10 raised to minus 8 अपॉन यहाँ 100 सेंटीमीटर दिया है. 100 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर होता है. सो 1 का स्क्वायर हो जाएगा. इस तरीके से हमें कैलकुलेशन को आगे बढ़ाना है. अब बहुत ही सिंपल है. अगर आप इस ब्रैकेट को खोलेंगे, तो आपको आएगा 9 into 10 to the power 9. पहला आप देखेंगे क्या आने वाला है, 10 raised to minus 8 plus 2 आएगा. आई होप यू एग्री. नीचे का -2 ऊपर चला जाएगा. प्लस 8, ये 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है. 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है. सो 4 कितनी बार कटने वाला है वहां पर ऊपर, 4 कितनी बार कटने वाला है ऊपर. So 4 will go 2 times. So this will become 2 into 10 raised to minus 6 plus 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9. 9 ऊपर कटेगा. So 3 into 10 raised to minus 6. इस तरीके से आपको आएगा प्लस डॉट 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 लास्ट में 10 to the power minus 6. So you can see throughout in everything 10 to the power minus 6 is common. आपको हर जगह पे 10 to the power minus 6 जो है मिलने वाला है, क्योंकि -8 प्लस 2 इज ऑल्सो -6. सो हर जगह पे आपको -6 मिल रहा है. आई होप यू आर गेटिंग इट. तो हर जगह पे हमें -6 कॉमन मिल रहा है. सो आई विल गेट द थिंग एज 9 into 10 to the power 9 into 10 to the power -6. मुझे मिलने वाला है 1 plus 2 plus 3 plus dot 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 plus 10. You know, it's as, so how much is 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10? कोई बताएगा मुझे कितना है? 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 plus 6 plus 7 plus 8 plus 9 plus 10. Yes. Yes, Priyanka, Aditya, Saurabh, everyone has answered 55. So 9 into 10 raised to 3 आ जाएगा इधर, because 9 और -6 3 हो जाएंगे, into 55 आ रहा है. 9 5 are 45, 49 ऐसे कुछ आपको मिल रहा है, which is न्यूटन में. This is the force. अगर आपको इसको डेसिमल में लिखना है तो भी लिख सकते हैं आप. I can write it as 4.95, मतलब multiply and divide by 100. So ये power बढ़ जाएगा. This will be fine. This is my net force that is acting on the charge at the origin. ये मेरा net force है जो इस Q0 चार्ज पर एक्ट कर रहा है जो ओरिजिन पे है. मतलब हमने क्या देखा, Q1 का असर Q0, Q2, Q3, Q10 तक, एंड दे आर ऑल ऑन द सेम लाइन. तो आपने को ज्यादा कुछ करना नहीं होता है जब स्ट्रेट लाइन में होता है. सो दिस इज द सिंपलेस्ट कैलकुलेशन दैट यू हैव टू फॉलो. प्लीज टेक इट डाउन क्विकली. Yeah, you can take a screenshot or whatever, but I would prefer you to write anyways because it's good for practice. One minute to write it down.
Have you completed? So this is the first type of question. That is okay. Yeah, I'm waiting. So this is type 1, wherein if all the charges are along the same line, because if you see the textual questions, they are in the vertices of a triangle, or they are on the sides of a square. So that would be like the next level. So this is like level 1, like the first type or the first kind, when all the charges are along the same line or the same axis. Completed? Okay. So next slide, I'm just showing you the next slide. This is the next slide. So this is the kind of question. So just for practice, I have put one more question. So there are infinite number of charges, each equal to 4 microcoulomb, placed along the x-axis at 1 meter, 2 meters. So again, this is all along the same axis. So if this is the origin, then at 1 meter, 2 meter, so ये यहाँ तक का distance 1 meter है, फिर यहाँ से यहाँ तक का distance 2 meter है. Then we have one charge at 4 meter, and then we have a charge as 8 meter. तो ये भी एक particular series में है. यहाँ पर एक charge है, यहाँ पर एक charge है, यहाँ पर एक charge है, और यहाँ पर एक charge. Infinite number of charges बोला है उसने. मतलब end नहीं हो रहा है. It's going on and on and on. End नहीं हो रहा है. It is going on and on and on. और वो n number of charges की बात कर रहा है. उसे जानना है कि जो 1 कूलम का जो चार्ज है, let's call it as Q naught, which is at the origin of this x-axis line, वहां पर net force कैसा होगा. ये आपको पता है. By superposition theorem, the total force that is going to act in such a case, can I remove 1 upon 4 pi epsilon naught? Q naught मैं बाहर निकाल रही हूँ क्योंकि Q naught सब में आने वाला है. ये आएगा Q1 upon R1 square plus Q2 upon R2 square plus dot 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 dot. ये जाने वाला है n इनफाइनाइट नंबर की तरफ. Qn लिख सकते हैं upon Rn square. अगर आप ध्यान से देखेंगे, उसने बोला है कि हर एक चार्ज का वैल्यू भी सेम है, 4 माइक्रोकूलम. इसका मतलब है Q1 इक्वल है Q2 Q3 सब इक्वल टू 4 माइक्रोकूलम है. इसका मतलब है मैं Q1 Q को भी बाहर, मतलब ये Q1 Q2 Q3 ऐसे लिखने की जरूरत नहीं है. सारे चार्जेस जो हैं वो सब इक्वल है. यानी कि मुझे यहाँ पर भी ये लिखना जरूरी पड़ेगा कि Q1 is equal to Q2 is equal to Q3 is equal to, you know, everything is 4 into 10 raised to minus 6 coulomb. That is 4 microcoulomb. So I can take 1 upon 4 pi epsilon naught is 9 into 10 raised to 9 into Q naught मेरा 1 coulomb है, और ये सारे charges भी तो 4 into 10 raised to minus 6 common आएगा. ब्रैकेट के अंदर क्या आएगा? 1 upon 1 का स्क्वायर जो 1 ही होगा, 1 upon 2 स्क्वायर मतलब 4 होगा, 1 upon 4 का स्क्वायर मतलब 16 होगा. इस तरीके से जा रहा है. So if I write it, it is like a progression. I hope you know what is progression.
So it is a progression. This is 1/1/2 square. This is 4 square. इस तरीके से जा रहा है. So this is some sort of a progression जिसको आप infinite geometric progression कह सकते हैं. GP जिसको कहते हैं आप, GP. So GP में इसका जो फॉर्मूला है, ये वाले पार्ट का जो GP में फॉर्मूला है, it is A/1 minus R. A is the first number and R is the difference between each of it. Yes or no? इन सबका डिफरेंस 1 minus 1/4. इन सबका जो कॉमन डिफरेंस आएगा सब में, उसको हम R बोल सकते हैं. सो इसको हम बहुत अलग अलग तरीके से भी कर सकते हैं. सो यहाँ पर 9 4 कितना होगा 36. तो यहाँ पे आ जाएगा 36 into 10 to the power 3 into 1/1 plus 1/2 का स्क्वायर plus 1/4 का स्क्वायर plus dot 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 dot. And as per the geometric expression, I can say A/1 minus R is equal to 1/1 minus 1/4. मतलब ये हो सकता है कितना? This is nothing but I can say 4/3 हो जाएगा. So ये जो है, इस एक्सप्रेशन को हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं. तो ये होगा 36 into 10 to the power 3 into 4/3 और ये 3 कटेगा यहाँ. So आंसर होगा 48 into 10 to the power 3 न्यूटन. ये आपका फाइनल आंसर है. ये कौन सा फोर्स है? दिस इज द नेट फोर्स विच इज एक्टिंग ऑन दिस चार्ज एट द ओरिजिन. और जैसे कि मैंने कहा कि ये क्वेश्चंस काफी अच्छे हैं, नेट फोर्स है ये, क्योंकि यहाँ पर आपको कुछ सोचना नहीं है, इन सबको ऐड कर देना है. सब ऐड करेंगे तो आपको नेट फोर्स मिल जाएगा. आई होप इट इज क्लियर एवरीबॉडी. प्लीज टेक इट डाउन.
I hope it's clear. Yeah, that's the formula. I can, I will have to explain it. I thought GP you have done. Yeah, I mean, whenever you have this kind of questions, maybe when I do MCQs, I'll explain GP again. I thought you studied in maths in 11th. If you have not done, I thought you'll have completed in mathematics. Maybe you have some sort of a series given to you. I can take a few examples when I'm doing MCQs. Right now, I think, I would like to go ahead because others I will lag with the chapter. Okay, so I will explain geometric progression. I'll give you some examples. Yeah. Today I would like to complete this. Please complete the next slide. So that's the formula that we apply normally, A upon 1 minus R raised to N. आप लिखते रहेंगे. I don't know how you have studied it. You must have Sn is equal to A. ऐसा कुछ पढ़ा रहेगा आपने. Your formula, have you used this sign only? I think maths में हुआ रहना चाहिए. Because there's AP and GP, right? So the arithmetic progression and the geometric progression. Yeah, so it's basically the common factor of multiplication that we take. Manav, if that explains, if you can understand what I just said. It's basically like the first term is A, right? The second term is A into R. The third term is like A into R square. That's how geometric progression goes. Right. So the first term over here, if I say 1 है, तो A into R is the second term, right? तो R हमारा 1/4 है. तो third term क्या होगा? 1/4 का square हो रहा है. इसलिए next term is 1/16. आप समझ रहे? So that's the common factor between all of it. Basically, that's how GP works. AR square. इसलिए उसका जो nth term होता है, that is like AR raised to n-1. वैसे जा रहा है, इसकी वजह से वो 1/4. So let's get to the next question. This is type 2. So जो भी हम कर रहे थे वो type 1 था. अभी हम type 2 के question की तरफ जाएंगे. Type 2 में I have considered a triangle. So ये सब examples आपके लिए, आपके सामने इसलिए है ताकि थोड़ा सा practice ये हो जाएगा, then you can understand which are the types of superposition theorem. तो उन्होंने कहा है कि it is on the vertices of an equilateral triangle. So I'm drawing that equilateral triangle here. ये मेरा equilateral triangle है. This is A, this is B, and this is C. And if you look at this, ये ऐसा होगा. So I'll tell you why. A पे मान लेते हैं plus Q है. Okay, I won't draw this suddenly now, because you'll be like, okay. So A पे कौन सा चार्ज है? A पे जो चार्ज है मान लेते हैं plus Q है. B पे मान लेते हैं plus Q है. और C पे मान लेते हैं minus Q है. अभी ध्यान देना, ये type 2 है. अब इसमें थोड़ा आपको दिमाग लगाना है, क्योंकि अब इक्विलैटरल ट्रायंगल है, साइड दिया नहीं है, तो हम L समझ के चलेंगे. ऑल द साइड्स आर इक्वल.
of the equilateral triangle. So now what is going to happen? Like suppose we want to find, say if I'm looking at each and every charge, can I say that there is a force of attraction between these two charges? Can I say there is a force of attraction between these two charges? Because ये negative है यहाँ पे, negative है, और ये वाला बाकी दोनों कैसे हैं? बाकी दोनों पॉजिटिव है, तो उसको भूलना नहीं है कि ये नेगेटिव है और ये दोनों पॉजिटिव है, यू नो, ये दोनों पॉजिटिव है, तो उनमें फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होगा और इसमें फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा. सो पहला काम ये होता है कि सारे एरोज ड्रॉ कर दे. तो अगर हम क्यू बी पॉइंट की बात करें, अगर हम बी पॉइंट पे अपना दिमाग लगाएं, अगर हम बी पॉइंट की तरफ जाएं, तो क्या हम बोल सकते हैं कि यहाँ एक फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा? किसकी वजह से? जो चार्ज ए पर है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन लगाएगा, राइट? और क्या हम बोल सकते हैं एक यहां पर भी फोर्स होगा, यानी कि यहां पर आपको दो फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, करेक्ट? एक फोर्स जो है वो बी पर लगा रहा है और ये दूसरा फोर्स जो है जो सी बी पर लगा रहा है. आप समझ रहे हैं? तो यहां दो अगर फोर्सेस आ जाते हैं तो क्या हम बोल सकते हैं यहां रिजल्टेंट होगा? So can I say this force is going to be the net force acting on this charge? So let's say this is charge 2. ये charge 1 है, ये charge 2 है, ये charge 3 है. तो net force 2 होगा. I hope you are getting it. अब अगर आप A पॉइंट पर जाएं तो क्या हम बोल सकते हैं एक तो फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा जो B का जो चार्ज है, मतलब सेकेंड वाला, वो फर्स्ट चार्ज पर लगा रहा है, तो ये F होगा. यहां एक और फोर्स आएगा, डू यू एग्री? यहां एक और फोर्स आएगा. तो इन दोनों का क्या आने वाला है? इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो मैं बोल सकती हूं ये फोर्स है F1. तो आपका ध्यान पूरा अभी ये फोर्सेस पे जाना चाहिए क्योंकि ये रिजल्टेंट लगा रहे हैं. Similarly, can I say that there is a force at C point also? क्योंकि यहाँ ऑलरेडी दो फोर्सेस आपको दिखाई दे रहे हैं. क्या मैं बोल सकती हूँ कि इसका जो रिजल्टेंट आएगा वो ऐसा कुछ रहेगा? यहाँ एक रिजल्टेंट फोर्स आएगा एंड दिस फोर्स इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज F3. तो आई होप यू अंडरस्टूड. पहला स्टेप था कि हमने सारे 1 और 3 के बीच अट्रैक्शन है, 2 और 3 के बीच अट्रैक्शन है, और 1 और 2 मतलब ए और बी के बीच रिपल्शन है. इस तरीके से हमें 3 नेट फोर्सेस मिल रहे हैं. यस और नो? और आप देखेंगे सारे सारे जो मैग्नीट्यूड वाइज अगर हम चार्जेस को वो माइनस क्यू को निकाल दें तो क्या हम बोल सकते हैं कि हमारे सारे फोर्सेस जो एफ 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 करके मैंने लिखा है, isn't it 1/4 pi epsilon नॉट Q इंटू क्यू, चाहे वो प्लस हो या माइनस हो, वो Q स्क्वायर अपॉन L स्क्वायर आने वाला है. ये हमारे फोर्सेस होने वाले एफ वाले. फिर हम उनसे F1, F2 और F3 निकालने वाले हैं. I hope this is clear to what I am trying to tell you. So हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे और हम यहां निकाल सकते हैं कि हमारा नेट फोर्स क्या होने वाला है. तो अगर हम F1 निकालेंगे तो वैसे ही हमारा F2 भी आ जाएगा, वैसे ही हमारा F3 भी आ जाएगा. सिर्फ एंगल में थोड़ा सा डिफरेंस होगा, राइट? पहले आप ये डायग्राम ड्रॉ करें फिर मैं प्रोसीड करती हूँ. आई हैव अनदर एग्जांपल सिमिलर टाइप जो मैं आपके सामने एक एक पे लगा के देखेंगे. ये अभी तीनों का है, यू नो, हम ए पॉइंट पर भी देख रहे हैं, बी पॉइंट पर भी देख रहे हैं, सी पॉइंट पर भी देख रहे हैं. सो सिर्फ आपको ड्राइंग आना चाहिए कि भाई ये नेट फोर्स कहाँ से कैलकुलेट होगा. तो पहले आप ये ड्रॉ करें फिर हम प्रोसीड करते हैं.
cos of 120 कितना होता है? Cos of 120, anybody? माइनस हाफ. वेरी गुड, तेजस ने आंसर किया है. Cos of 120 माइनस हाफ होगा. 90 plus 30. तो यहां हम देख रहे हैं कि तीनों पर फोर्स एक्ट हो रहा है. So you have to find the resultant on each. So let me do one का example first and then maybe you could try all the three. So एक का example देखते हैं. Similarly है, सिर्फ मैंने थोड़े values डाल दिए इसमें ताकि जो हम यहाँ Q Q बता रहे हैं वैसा कुछ values डाल दिए. So say this is your triangle. ये एक triangle है. Similar question है ताकि आप थोड़ा clearly सोच सके. This is a similar question. मान लेते हैं ये A है, B है, C है, कोई फर्क नहीं पड़ता आप किसको कहाँ लेते. It's an equilateral triangle and this triangle is in space. Air is the medium. और यहाँ पर अपना पहला चार्ज है +5 माइक्रोकूलम.
बिकॉज ये काइंड ऑफ क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपने देखा भी रहेगा अगर कॉलेज का एग्जाम हुआ है। 10 माइक्रोकूलम और ये है -10 माइक्रोकूलम। माइक्रो मीन्स 10 टू द पावर -6। और इसके सारे साइड्स जो हैं वो 5 सेंटीमीटर्स के हैं, इधर भी 5 सेंटीमीटर है और इधर भी 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, यहाँ पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा और यहाँ पर फोर्स ऑफ रिपल्शन होगा। आई होप यू कैन सी दिस। पहला काम यही करना है। अब इन्होंने पूछा है कि डिटरमाइन द रिजल्टेंट फोर्स ऑन द चार्ज एट ए, मतलब एक ही सॉल्व करने वाले हैं इधर ए वाले इसमें। तो ए वाले इसमें क्या होने वाला है कि जो बी वाला जो फोर्स है वो यहाँ एक्ट करेगा क्योंकि वो रिपेल हो रहा है, और ये जो सी वाला फोर्स है ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो ये ऐसे आने वाला है। आई होप यू एग्री। तो इसको मैं ऐसे ही F1 नाम दे देती हूँ और इसको मैं F2 नाम दे सकती हूँ। मैं कुछ भी दे सकती हूँ नाम, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। आई कैन राइट FBA, यू नो, आई कैन राइट द फोर्स ऑन A ड्यू टू B, वैसा सब लिख सकते हैं, बट मैं सिंपल रख रही हूँ F1 और F2। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये एक फोर्स आ गया, ये एक फोर्स आ गया। अब दोनों का क्या निकलेगा? दोनों का रिजल्टेंट निकलेगा। ये ऐसे एक लाइन आने वाला है जो नेट फोर्स है। अगर आप इस नेट फोर्स को ध्यान से देखेंगे तो वो पैरेलल टू BC बोल सकते हैं हम लोग। इट इज पैरेलल टू दिस बेस BC। कोई मुझे बता सकता है इसका एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? ये पूरा एंगल कितना होगा? यस, ये पूरा का पूरा एंगल 120 डिग्री होगा, राइट? और ये वाला जो एंगल है, ये जो छोटा वाला एंगल है इधर, ये कितना होगा? कैन आई से इट इज 60 डिग्री? क्या हम बोल सकते हैं 60 है? क्योंकि ये भी 60 है, ये भी 60 है और ये भी 60 है। इट्स एन इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब हम क्या करेंगे? हम पहले F1 ढूंढेंगे, F2 ढूंढेंगे, फिर रिजल्टेंट में खेलेंगे। रिजल्टेंट मतलब हम पैरेललोग्राम लॉ लगाएंगे वेक्टर एडिशन का। तो हम पहले F1 निकालते हैं। हमारा F1 हो जाएगा, F1 किसके बीच का फोर्स है? B और A के बीच का फोर्स है। B और A के बीच का है। सो F1 इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट द चार्ज एट A into the charge at B upon the distance between them, which you know is going to be 5 into 10 raised to -1 the whole square. 5 सेंटीमीटर्स बोला ना, तो 5 into 10 raised to -2 the whole square. So इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये है 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power -6 into 10 into 10 to the power -6 upon 5 into 10 raised to -2 the whole square. So ये 25 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, राइट? सो अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमें क्या मिलने वाला है? सो दिस इज गोइंग टू बी 9 5 45 अपॉन 25 इंटू 10 टू द पावर, क्या हाल है? -6 इज -12, -12 और 9 हो जाएगा, -12 और 9 हो जाएगा 3, और 3 और ऊपर -3 और ये जाएगा तो हमें 10 बच मिलकर 10 मिल रहा है ना? हम्म, 10 मिल रहा है। तो ये क्या हो जाएगा? 5 9 और ये 5 5 25, ये 90/5 आएगा। कुछ तो मिसिंग लग रहा है मुझे। 9 into 10 to the power 9, 5 into 10 raised to -6 upon 5 5 into 10 raised to -4, -12 और 9 is -3, -3 प्लस 4 बराबर लग रहा है।
समथिंग समवेयर, आई होप इट्स करेक्ट। अच्छा, एक 10 यहाँ पर भी है, मैंने वो 10 भूल गई मैं, 100 आएगा, so into 900 आएगा, that means this is going to be 180. Yes, there was a 10 here which I forgot, ये 10 raised to power 1 है इधर, so वहां पर एक 10 है, so answer 180 न्यूटन आएगा। And this 180 Newton is acting along which direction? Can I say it is acting along, कौन से डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है? तो क्या हम बोल सकते हैं ये बी और ए के बीच एक्ट कर रहा है? सो इट इज अलोंग बी ए, इट इज अलोंग बी ए, क्योंकि ये रिपल्सिव फोर्स है, ये बाहर की तरफ एक्ट कर रहा है, ये आपका F1 है जो हमने यहां ड्रॉ करके रखा है F1। सिमिलरली हमें F2 निकालना है, कहाँ है F2? F2 इज अलोंग ए सी, आप देखेंगे ए और सी के बीच जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो हमारा F2 है, तो हम F2 की तरफ ध्यान देते हैं। So F2 is going to be 1/4 pi epsilon naught, that means 9 into 10 to the power 9 into 5 into 10 to the power -6 into 10 into 10 to the power -6 upon 5 into 10 raised to -2 the whole square। मतलब ये वापस वही आने वाला है आंसर, this also will be 180 Newton, but this will be along AC, सिर्फ डायरेक्शन उसका थोड़ा डिफरेंट रहेगा। अगर हमारे पास F1 और F2 है तो क्या हम F निकाल सकते हैं? एब्सोल्युटली हम F निकाल सकते हैं। हमारा F का फॉर्मूला कुछ ऐसे आने वाला है, F इज अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos of 120, because 120 is the angle between F1 and F2, राइट? सो इसमें हम सब्सटीट्यूट करके हम हमारा आंसर लेके आने वाले हैं। इतना लिखो, फिर हम प्रोसीड करते हैं। प्लीज राइट इट डाउन क्विकली। टेल मी व्हेन इट इज कंप्लीटेड।
Okay, completed. So we can proceed towards that formula. So what we are doing is we are basically finding out this, and these questions, as I said, are all NCERT level questions. We have to study them for all our competitive exams. So here our F is under root of, here our F is under root of F1 square plus F2 square plus 2 F1 F2, and cos of 120 is how much? Cos of 120 is minus half. So आप देखेंगे 180 का स्क्वायर थ्रू आउट कॉमन है, तो 180 बाहर आएगा, अंडर रूट ऑफ 1 प्लस 1 प्लस 2 इंटू माइनस हाफ हो जाएगा. सो ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिलेगा 180 बराबर, आपको 180 न्यूटन मिलेगा आपका आंसर. 180 न्यूटन इज द आंसर. अब हमें अगर इसके बीच का रिजल्टेंट एंगल निकालना है कि ये कितने एंगल पे हो रहा है, दो वी नो वी कैन सी इट हियर, बट ये कितना एंगल है अगर आपको निकालना है. सो रिजल्टेंट फोर्स का एक फॉर्मूला था, आप जानते रहेंगे इस फॉर्मूला को. इफ आई से दैट आई वुड लाइक टू सी द एंगल ओवर देयर, दैट मींस tan बीटा या tan थीटा, आपको जो डालना है आप डाल सकते हैं. F2 साइन ऑफ, ये आपने फॉर्मूला किया रहेगा 120 अपॉन F1 प्लस F2 कॉस ऑफ 120. ये फॉर्मूला आपको एंगल के लिए डालना पड़ेगा. F2 आपको पता है कि 180 है, साइन ऑफ 120 इज √3/2 अपॉन दिस इज 180 प्लस 180 इंटू माइनस हाफ. तो यहाँ आप 180 को कॉमन निकाल सकते हैं डिनोमिनेटर में, तो बचेगा √3/2, और नीचे जो है 1 माइनस हाफ, 1 माइनस हाफ हो जाएगा हाफ, और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, आपको √3 मिल रहा है. इसलिए हमारा एंगल जो है बीटा will be tan inverse of half, sorry, tan inverse of √3, and tan inverse of √3 is 60 degree. I hope you are getting what I am saying, and इस तरीके से आपको 60 डिग्री मिल रहा है. सो ये आपके एंगल के लिए, और आप बोल सकते हैं कि आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है वो पैरेलल टू द बेस BC है, तो ये आप ऐसे निकाल सकते हैं. सो यू कैन फिनिश इट ऑफ, एंड देन वी विल नाउ लुक एट स्क्वायर, बिकॉज हमने अभी ट्राइंगल देख लिया, ट्राइंगल के एक वर्टाइसिस देख लिया, तो यूजुअली वन ही वर्टाइसिस पूछेंगे, तीनों का नहीं पूछने का है. बट स्टिल वी आर टेकिंग स्टेप बाय स्टेप. पहले हमने लाइन में चार्जेस थे हमारे, फिर हमने ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल के कॉर्नर्स पे देखा. अभी हम देखने वाले हैं कि ये स्क्वायर पे रहेगा तो कैसा रहेगा. स्क्वायर जो आपके टेक्स्ट बुक में है, मतलब डायरेक्टली टाइप 3 दे दिया आपको. हैव यू फिनिश्ड? क्या हम स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं? ये हमारा टाइप 2 था, अब हम टाइप 3 मतलब स्क्वायर की तरफ जा सकते हैं.
यस 180 का स्क्वायर कॉमन लिया, 180 का स्क्वायर कॉमन लिया, खत्म हो गया। नेक्स्ट टाइप की तरफ जाए। सो ये एक सीरीज ऑफ क्वेश्चंस है जो आपको काफी हेल्पफुल रहेगा, क्योंकि टेक्स्ट बुक जो है वो आपको डायरेक्ट जंप मार रहा है तो फिर आप समझ नहीं पाएंगे। तो टाइप 1 में हमने लीनियर चार्जेस देखे, मतलब एक ही लाइन में है सारे चार्जेस। सेकेंड पार्ट यानी कि ये जो क्वेश्चन हम कर रहे थे इसमें ट्रायंगुलर शेप में चार्जेस जो है वो अरेंज्ड हैं। अब हम जो देखने वाले हैं वो स्क्वायर, कॉर्नर्स ऑफ स्क्वायर पे है। जो हमने टेक्स्ट बुक में वो जो क्वेश्चन देखा था जिसका हमें सोल्यूशन डालना था, अगर आपको याद है वो क्वेश्चन नंबर 7 कुछ है टेक्स्ट बुक का जो हमें करना था। सो हम इसको समझ लेते हैं पहले एक चार्ज में। तो इफ वी हैव अ स्क्वायर, सो दे हैव सेड देयर आर 4 इक्वल, अच्छी बात है कि सारे चार्जेस आपके इक्वल हैं, एंड ईच ऑफ इट इज 16 माइक्रोकूलम, यानी कि मैं बोल सकती हूँ कि इसे जो चारों चार्जेस मैं कंसिडर कर रही हूँ वो चारों के चारों क्यू हैं और उसका वैल्यू है 16 इंटू 10⁻⁻⁶ कूलम। और इसके साइड्स जो हैं वो है 0.2 मीटर्स, इसके भी 0.2 मीटर्स हैं, इसके भी 0.2 मीटर्स हैं और इसके भी 0.2 मीटर्स हैं, राइट। अब हमारे पास चार चार्जेस हैं तो हम चारों चार्जेस की तरफ अगर देखते हैं, सो अगर ये हमारा ए पॉइंट है, ये हमारा बी पॉइंट है, ये हमारा सी पॉइंट है और ये हमारा डी पॉइंट है, और हमारे चार्जेस जो हैं वो Q1 है, यहाँ Q2 है, यहाँ Q3 है और ये हमारा Q4 है। सो कैलकुलेट द फोर्स ऑन एनी ऑफ द चार्जेस, ये आपके समझने के लिए एग्जाम्पल लिया गया है। तो हम Q4 पे निकालते हैं, यानी कि डी पॉइंट पर अपना फोर्स निकालते हैं। सो अभी आप सोचो इन दोनों के बीच कैसा है, कैन आई से देयर इज अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, क्योंकि एंड कैन आई से हियर आल्सो देयर विल बी अ फोर्स ऑफ रिपल्शन, बिकॉज सारे चार्जेस जो है स्क्वायर के इक्वल हैं। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि एक फोर्स ऐसे आने वाला है और दूसरा फोर्स ऐसे आने वाला है। लेट मी कॉल दिस फोर्स एज F1, लेट मी कॉल द अदर फोर्सेस F2। क्या मैं कुछ मिस कर रही हूँ? कोई और चार्ज भी डी पॉइंट पर इफेक्ट करेगा क्या? क्या कोई और चार्ज भी है जो डी पॉइंट पर इफेक्ट करेगा? यस एब्सोल्युटली, बी को भूलना नहीं है क्योंकि ये डायगोनली आके ऐसे आ जाए। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे भाई तीन फोर्सेस आने वाले हैं रिपल्शन के, क्योंकि यहाँ पर भी आपको एक फोर्स ऑफ रिपल्शन मिलने वाला है ड्यू टू द अदर चार्जेस ऑन पॉइंट डी। एंड ए बी हो, बी सी हो, CD हो, ED हो, ये सब 0.2 है और इन सारे चार्जेस का 16 इंटू 10⁻⁻⁶ है। सो पहले ढूंढ लेते हैं F1। F1 किसका असर है? ए पर जो चार्ज है यानी कि Q1 का असर Q4 पे कितना हो रहा है। तो पहले मैं F1 का लिख रही हूं यहाँ पर। F1 हो जाएगा 1/4πε0, मतलब 9 इंटू 10⁻⁹, सारे चार्जेस इक्वल है हमारे। सो 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻⁶ को डायरेक्ट -12 लिख रही हूँ। अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? कैन आई से इट इज 2 इंटू 10⁻⁻1 द होल स्क्वायर। से आप ये कैलकुलेट कर सकते हैं, ये कुछ ऐसे आएगा 57.6 न्यूटन अलोंग AD। अभी आपको पता है, आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। सिमिलरली क्या मैं पता लगा सकती हूँ कि Q2 दिख रहा है राइट, डायगोनल वाला Q2 जो है वो Q4 पे कितना लगाएगा, तो उसको F2 बोल देते हैं। वो क्या होगा 9 इंटू 10⁻⁹ इंटू ऑब्वियसली चार्जेस आर सेम, तो 16 इंटू 16 इंटू 10⁻⁻12 अपॉन क्या आने वाला है यहाँ पे, आई विल राइट 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर, क्योंकि डायगोनल का लेंथ कंसिडर करना पड़ेगा। बराबर है, डायगोनल जो है पाइथागोरस से आएगा, तो 0.2 स्क्वायर प्लस 0.2 स्क्वायर। तो इसका जो आंसर है मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, ये कुछ 28.8 न्यूटन आता है, विच विल बी अलोंग द डायगोनल दैट इज अलोंग BD। यहाँ तक सबको समझा? कोई दिक्कत है? अच्छा, बिना कैलकुलेट किए कोई मुझे बताएगा F3 कितना होगा? बिना कैलकुलेट किए क्या आप मुझे बता सकते हैं कि F3 क्या आने वाला है?
F3 क्या आने वाला है बिना कैलकुलेट किए, क्योंकि कुछ वैल्यूज यहाँ सेम है. इट इज गोइंग टू बी सेम एज F1. कैन आई से F3, यहाँ पर मैं F3 लिख रही हूँ. F3 इज ऑल्सो गोइंग टू बी हाउ मच? इट इज गोइंग टू बी 57.6 न्यूटन ओनली. सिर्फ उसका डायरेक्शन अलग रहेगा. इट इज गोइंग टू बी अलोंग CD, क्योंकि मैग्नेट्यूड वाइज F1 और F3 तो सेम है, सिर्फ इसका डायरेक्शन अलग रहेगा. इस तरीके से हमारे पास F1 है, F2 है और F3 है. अगर आप तीनों फोर्स को देखेंगे तो क्या कोई 90 डिग्री पे है? कोई 90 डिग्री पे है? कौन है जो 90 डिग्री बना रहा है खुद के बीच में? कौन है जो 90 डिग्री बना रहा है? विच फोर्सेस? क्या हम बोल सकते हैं कि F1 और F3 जो है वो 90 डिग्री बना रहे हैं? तो उनका रिजल्टेंट निकालना कुछ आसान हो जाता है, क्योंकि अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 या 2F1 F3, सॉरी, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर प्लस 2F1 F3 cos ऑफ 90. cos ऑफ 90 क्या हो जाता है? cos ऑफ 90 क्या होता है? 0 होता है. इसका ये मतलब है हम रिजल्टेंट निकाल रहे हैं, उसको F डैश बोलते हैं, F1 और F3 के बीच. तो ये F1 स्क्वायर प्लस F3 स्क्वायर हो जाता है, जो काफी इजी है बिकॉज दोनों का वैल्यू सेम है. सो 57.6 का स्क्वायर प्लस 57.6 का स्क्वायर, which is going to be under root of 2 into 57.6 का स्क्वायर, which is going to be nothing but 57.6 into under root 2 आएगा. राइट? ये अंडर रूट 2 का वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर या प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि ये 1.414 होगा. इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये करीबन 81.5 न्यूटन के करीबन आता है. नाउ कैन यू टेल मी, अभी सोच के बताना, ये जो F डैश मैंने लिखा है, जो 1 और 3 का रिजल्टेंट है, अब देखो बड़े प्यार से देखो क्या होने वाला है. क्या हम बोल सकते हैं इसका रिजल्टेंट इसी के डायरेक्शन में है? क्या हम बोल सकते हैं कि आपका जो F डैश आपको मिला है, क्या हम बोल सकते हैं वो F2 के ही डायरेक्शन में है? अगर ऐसा है तो हमारा वेक्टर का कंसेप्ट क्या बताता है? अगर F2 और F1 एक ही डायरेक्शन में है तो क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? क्या हम दोनों को ऐड कर सकते हैं? F2 और F1 को हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे, मतलब हमें नेट फोर्स एट D मिल जाएगा. आपको समझा कैसे करने का? ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा. समझ रहे? F1 और F3 जो है, पहले उसका रिजल्टेंट निकालो, फिर उसको क्या करो, को जो एग्जिस्टिंग F2 है उसके साथ आप क्या करो, ऐड कर दो. इस तरीके से आपका कैलकुलेशन थोड़ा इजी पड़ जाता है. तो मैं वो कैलकुलेशन यहाँ लिख रही हूँ क्योंकि मैं सिर्फ D पॉइंट पर देख रही हूँ. राइट? सो द टोटल force, the total force on Q4 is क्या होने वाला है? The total net force that is going to act at point D is going to be nothing but F2 plus जो मुझे F dash मिला है, and that is nothing but F2 मुझे already पता है, which is around 28.8 plus मेरा 81.5, जो लगभग मुझे approximately या इक्वल टू कितना मिलने वाला है? 110.3 न्यूटन मिलेगा. एंड आई कैन से इट इज अलोंग BD. ये मेरा नेट फोर्स है एट D. तो क्या आप वो टेक्स्ट बुक वाला क्वेश्चन अभी सॉल्व कर पाएंगे? आप समझ रहे हैं? क्योंकि फिर इजी हो जाएगा, बिकॉज अभी हमें पता है कि देन व्हाट इज द नेट फोर्स निकालना एट ईच एंड एवरी वर्टाइसिस. ठीक है, तो पहले आप ये कॉपी कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हुए जाते हैं. सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एंड दिस इज योर टाइप 3. ये हमारा टाइप 3 है और इसको सबसे इंपॉर्टेंट मार्क करें आप, क्योंकि ये काफी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखेंगे तो.
Tell me when I have to shift to the next slide. I hope you're understanding the type, because superposition is not difficult, but uska ek, you have to be smart to answer it. It is not difficult. एक तीन टाइप है उसमें, यानी कि कभी कभी वो सीधे लाइन में होते हैं सारे चार्जेस, कभी कभी ट्रायंगल में होते हैं, या कभी कभी स्क्वायर में होते हैं. यही पूछते हैं वो लोग. ट्रायंगल, इक्विलैटरल ट्रायंगल या स्क्वायर या लाइन में ही रहते हैं. आपको काफी कॉम्प्लिकेटेड तो नहीं है. यही टाइप के हैं. अभी हम थोड़ा सा थोड़ा सा डायरेक्शन के हिसाब से भी कुछ बुक्स में वो लोग विथ कैप भी समझा देंगे. बट आई थिंक मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस ऑफ एनसीईआरटी आर नथिंग बट ट्रायंगल और स्क्वायर ओनली. सो इवन इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आपको फिर ज्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगा. मतलब हेक्सागन ऐसा सब नहीं जाएगा. इज इट डन एवरीबडी? Some of you all have finished, I know, but what about everybody? If you can say yes, then I can show you the next slide. Okay, so the next slide is this one. So I think one more lecture and we are done. That is, I think tomorrow or day after, one more lecture, and then I will be continuing with 12th standard. So then I will welcome you to 12th standard. So 11th standard, we have almost completed all the topics that we will be, and this is one of the biggest chapters. That's why we are continuing with the 12th standard. So I think that if electrostatics gets over, I hope you know that some of the most important topics, if I would say, or difficulty level जो topics होता है, physics में, वो normally electrostatics is one of them. Thermodynamics होता है एक, और फिर ray optics होता है, और motion in one dimension होता है. So ये जो questions हैं, motion in one dimension हो, या ray optics हो, या electrostatics हो, या करंट इलेक्ट्रिसिटी हो, ये अगर चैप्टर्स पहले आप कर लोगे तो आपको जेई या नीट में कोई दिक्कत नहीं होगी. Yes, you can just revise all the formulas beta, and whatever you can just go through the synopsis in Marvel, क्योंकि हम अभी एमसीक्यू करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि हमारा टेक्स्ट बुक 2 प्रॉब्लम बचे, वो कंप्लीट कर लेंगे. और फिर मैं कुछ आपको एक पीडीएफ भेज दूंगी जहां पर थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने सॉल्व किया है, एंड देन वी कैन मूव अहेड, बिकॉज ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है. अगर आप देखेंगे, जो बच्चे बोलते हैं कि काफी हमें दिक्कत पड़ती है, तो अगर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 11th अगर आप समझ गए ना, तो 12th तो इज वेरी वेरी सिंपल. मैं बोलूँ आपको मस्का होगा, मतलब आपको लगेगा कि भाई क्या है, 12th में तो कुछ भी नहीं है. 11th एक्चुअली स्पेशली दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस वगैरह आप सीख लें. इज इट ओवर? Okay, so there is one question here which is related to equilibrium. So एक type 5 है. I think this is type 1 हो गया, type 2 हो गया, type 4 है. So ये type 4 है, जहां पर हम जब भी आपको दिया जाता है, तो ये सारे types होते हैं, ये काफी easy होते हैं. उन्होंने पूछा है कि what is so that the charge at A remains in equilibrium. तो मैं आपको आइडेंटिफाई करने की बात कर रही हूँ कि अगर एक्सिस वाला है, सेम लाइन पे है सारे चार्जेस, तो वो टाइप 1 है. अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल की बात हो रही है तो टाइप 2 की बात हो रही है. एंड इफ वी आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर, टाइप 3 है. और टाइप 4 में ऐसा कुछ लिखा रहेगा कि एक पॉइंट पर आपको इक्विलिब्रियम ढूंढना है. सो दिस इज द 4th टाइप ऑफ क्वेश्चन दैट वी आर कमिंग टू.
तो इधर आप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकते हैं एंड वी कैन कंसिडर सम पॉइंट्स हियर। ए पॉइंट है जहां 2 माइक्रोकूलम है, ये बी पॉइंट है जहां -3 माइक्रोकूलम है, और ये सी पॉइंट है जहां +3 माइक्रोकूलम है। तो इस तरीके से ये तीनों जो है यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। दिस इज 20 सेंटीमीटर्स, दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर्स एंड दिस इज ऑल्सो 20 सेंटीमीटर्स। इस तरीके से तीनों पार्ट्स या साइड्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है, 60 डिग्री के एंगल पे है। नाउ क्वेश्चन को आगे बढ़ते हुए पहले हम लोग ए को देख लेते हैं, क्योंकि हमें ए पे ही ढूंढना है कि हाउ टू ब्रिंग इट अंडर इक्विलिब्रियम। सो पहले ए की तरफ देख लेते हैं एंड ए में आपको पता चलेगा कि या दोनों माइनस है, या करेक्ट, थैंक यू, दोनों माइनस है यहाँ। तो यहाँ पर जो है कि ये -3 है, -3 और ऊपर वाला 2 है। सो इन दोनों के बीच क्या होने वाला है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा, मतलब देयर इज गोइंग टू बी अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हियर, एंड इन दोनों के बीच क्या होगा, देयर इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हियर ऑल्सो, यानी कि ये ऐसे आएगा। यानी कि ये बहुत क्लियर है दैट यू नो दैट यहाँ पर हमारा रिजल्टेंट आने वाला है। सो दिस देयर विल बी अट्रैक्शन, तो हम सिर्फ ए की तरफ कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं, इसलिए हमने ये ड्रॉ किया। तो ये जो रेड वाला है मान लेते हैं F1 फोर्स है, ये वाला दूसरा वाला जो है वो F2 फोर्स है। तो हम बोल सकते हैं ये जो है ये नेट फोर्स है, करेक्ट। सो जस्ट लाइक प्रीवियस केस, अभी आपको F1 F2 तो निकालना आ जाएगा, तो ये मैं फटाफट लिख रही हूँ यहाँ पे। F1 जो है विल बी नथिंग बट 9 into 10⁹. F1 is the force between A and B, so मैं उसके वैल्यूज लिख रही हूँ यहाँ पे। 2 into 10⁻⁻6 into 3 into 10⁻⁻6 upon the distance between them is 2 into 10⁻⁻1 the whole square. So ये जो है this comes to 1.35 Newton and this is going to be along AB. Similarly, अगर हम F2 पकड़े तो F2 is 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 to the power -6 into 3 into 10 to the power -6 upon इसका भी 2 into 10⁻⁻1 the whole square होने वाला है, और इसका भी आंसर 1.35 न्यूटन ही आने वाला है along AC. So F1 और F2 जो है सेम वैल्यूज आने वाले हैं, बट उनके डायरेक्शंस थोड़े अलग हो जाएंगे। और ये एंगल तो आपको पता ही है, ये एंगल कितना है, F1 और F2 के बीच का जो एंगल है ये आप सबको पता है। F1 और F2 के बीच का एंगल तो 60 है। इसका मतलब हम रिजल्टेंट F निकालते हैं तो काफी इजी हो जाएगा। F इज √of F1 स्क्वायर F2 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 जो इक्वल है एक्चुअली और cos ऑफ 60। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1.35 का स्क्वायर प्लस 1.35 का स्क्वायर प्लस 2 into 1.35, so this is again 1.35 का स्क्वायर एंड cos ऑफ 60 कितना होगा, हाफ, राइट। सो 1.35 का स्क्वायर बाहर आते हुए 1.35 हो जाएगा, √of 1 प्लस 2 into हाफ हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपको मिल रहा है 1.35 into √of 3 and this is 1.35 into 1.732 जो आपको बताया गया था। √3 का वैल्यू मैंने आपको बताया था कि इज 1.732 and this answer comes to around 2.34 Newton which is along the median. ये मीडियन है, समझ रहे? तो एक नाम दे दे रही हूं मैं M, ये आपका मीडियन है, यहाँ पे मिड पॉइंट है, तो आई कैन से दिस इज along AM। इस तरीके से हमने रिजल्टेंट ढूंढ लिया जैसे हम हमेशा ढूंढते थे, तो इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं था। बट उन्होंने ये पूछा है कि
व्हाट शुड बी द साइन, अगर आप सेकेंड लाइन पढ़ेंगे, ये वाला लाइन पढ़ेंगे, उन्होंने पूछा है कि व्हाट शुड बी द साइन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द चार्ज टू बी प्लेस्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ बीसी, जिसको मैंने एम नाम दिया है, यानी कि वहां कितना चार्ज मैं रखूं ताकि द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम. What charge should I keep at M so that there is an equilibrium? ऐसा पूछा. पहले तो AM का आपको, can I say AM is under root of 20 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर. ये मेरा 20 है, ये मेरा 10 है, तो AM निकाल सकते हैं क्योंकि मिड पॉइंट है M. सो 20 स्क्वायर, पाइथागोरस लगा रहे हैं यहाँ पे, दिस विल बिकम नथिंग बट रूट ऑफ 300, which is nothing but, can I say it is 10 into root 3. And root 3 is 1.732, तो हम बोल सकते हैं this is 17.32. ये हमारा जो 17.32 मीटर्स आने वाला है, आप 17.32 सेंटीमीटर, बिकॉज मैंने वो 10 सेंटीमीटर लिया है, 20 सेंटीमीटर ही रखा. तो ये हमारा जो है वो हमारा वैल्यू आ जाएगा. क्लियर है बच्चा? तो इक्विलिब्रियम पूछा मतलब क्या, जो नेट फोर्स होगा, नेट फोर्स एट ए होगा. इक्विलिब्रियम मतलब नेट फोर्स एट ए शुड बी 0, राइट. व्हेन आई से दैट द चार्ज एट ए रिमेन्स इन इक्विलिब्रियम, इसका मतलब जो नेट फोर्स एट ए है वो 0 होना चाहिए. दैट्स द मीनिंग ऑफ दैट. सो द नेट फोर्स ऑन चार्ज एट ए विल बी 0. कब वो 0 होगा? अगर जो मुझे फोर्स मिल रहा है वो इक्वल टू 2.34 होना चाहिए. करेक्ट. ये दोनों ए और एम कब इक्विलिब्रियम में होगा? जब द नेट फोर्स इज इक्वल टू 2.34. दैट मींस इट शुड बी 9 into 10 raised to 9. इंटू एम पे कितना चार्ज है पता नहीं है, ए पे मुझे पता है 2 into 10 raised to -6 है, अपॉन दोनों के बीच का डिस्टेंस मैंने 17.32 into 10 raised to -2 निकाला है, विच इज द होल स्क्वायर. आप इसको 10 √3 के इसमें भी डाल सकते हैं. दिस इज इक्वल टू 2.34. तो हमारा जो क्यूब है, इट इज गोइंग टू बी नथिंग बट 2.34 into 17.32 into 10 raised to -2 the whole square divided by 9 into 10 to the power 9 into 2 into 10 raised to -6. और ये आंसर, ये जो आपको आंसर आने वाला है, ये मैं लिख रही हूँ यहाँ पे, आपको जो आना चाहिए, this comes to around 3.9 into 10 raised to -6 कूलम. ये आपका फाइनल आंसर है. तो ये Q वाला जो कंसेप्ट है ये कब आता है? when we are talking about equilibrium concept. So this is the last question of today. Please take it down quickly, and if you have any doubts, ask. Please take it down quickly. Just tell me if it is done. Yeah, it is in centimeters. You have to convert it. Yeah, F2 is also 1.35 Newton. ये 35 है, 1.35 न्यूटन है. दोनों 35 न्यूटन है क्योंकि वैल्यूज दोनों के सेम है. Can I shift the slide?
सो हमने आज 4 टाइप देखा सुपरपोजिशन का, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 एंड टाइप 4। यहाँ पे हम रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं इस स्लाइड में, जहां पर हम F1 और F2 का रिजल्टेंट एट पॉइंट ए ढूंढ रहे हैं, जो हमें F मिल रहा है। प्रीवियस स्लाइड राज ये है। हो गया राज? सो यहाँ पर हम दोनों का रिजल्टेंट ढूंढ रहे हैं एट पॉइंट ए, और अभी हमें नेट फोर्स निकालना है अलोंग द मीडियन, जहां पर हमारा रिजल्टेंट 0 हो रहा है। लास्ट स्लाइड। Please tell me if it is done. Completed? Everybody? Done? So that brings us to the end of the 13th lecture on electrostatics. Thank you for joining me, and good night, because I wish that you revise this. This is the last part of the chapter. And so in the coming lecture, I will be doing the multiple choice questions of this chapter, along with the 2 questions that we have left out in the textbook. And that will be done for 11th standard. Okay, thank you and bye-bye.